बॉलिंग गलता अक्षय, और अभी खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अक्षय अभी तक इस टूर्नामेंट में विकेट्स लपक चुके हैं, काफ़ी विकेट्स और दमदार प्रदर्शन अभी तक अक्षय मडवाला। यहाँ पे मारुतिगढ़ एंड की तरफ से बॉलिंग अपना करिश्मा जारी रखते हुए, और बैटिंग में बल्लेबाज महादेव और नितेश। एक रन थर्ड मैन की दिशा में एक कट लगाकर अपना खाता खोला है टीम का। काफी मजबूत टीमें दोनों, हालांकि जंक्शन ने इन दोनों को पछाड़ा है और इस प्रतियोगिता में अभी तक अनबिटन टीम रही है जंक्शन। और फिर एक बार कैच हो सकता है और कैच छोड़ दिया, यहाँ पे कैच छोड़ दिया और 4 रन। हालांकि अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन फील्डिंग का, फील्डर जाते हुए दौड़ते हुए शॉर्ट कवर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इस 2 रन के जरिए स्कोर पहुंचा है 3 रन के ऊपर। दिस टाइम इट इज वाइड, और वाइड बॉल का सिग्नल देते हुए यहाँ, और जय हनुमान क्लब मैं हमको आमंत्रण देना चाहूंगा कैप्टन को। कैप्टन थोड़ा इधर पेंडल में आ जाइए। जय हनुमान कैप्टन मात्सो माटवानी हो। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, हालांकि रन आउट हो सकता है, लेकिन कोशिश की थी, कोशिश बढ़िया यहाँ पे प्रहलाद ऊपर दोबारा, लेकिन एक रन रोक नहीं सके। फिर भी बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा, हालांकि स्कोर अगर और ये मैच जीतना है तो 40-45 के ऊपर जाना चाहिए। अगर 40-45 के ऊपर कर सकते हैं तो ये मैच बहुत ही अच्छा और तगड़ा हो सकता है। दोनों ही टीमें बहुत ही स्पेशली बॉलिंग में काफी मजबूत। फिर एक बार और रन आउट का मौका था, काफी क्लोज, नजदीकी मामला, बहुत ही नजदीकी मामला। यहां अगर डायरेक्ट हिट हो चुकी होती तो मुझे लगता है कि बैट्समैन पेविलियन में वापस जा चुके होते। अभी तक किफायती बॉलिंग कर रहे हैं अक्षय मडवल। स्कोर पहुंचा है 6 रन के ऊपर। फिर एक बार बहुत ही ऊपर, देखेंगे कौन लपक लेगा ये कैच, और बहुत ही खूबसूरत अच्छा जजमेंट करते हुए कैच ले लिया, और अक्षय मडवल को एक विकेट यहां पे मिलती हुई 1 ओवर की समाप्ति के बाद। लास्ट बॉल इस ओवर का। और ये बहुत ही तगड़ा शॉट, अच्छा फ्लिक करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, और इस फ्लिक के जरिए इस छक्के के बदौलत स्कोर पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। And this time, once again, very nicely pivoted down in the final leg region. He gets a boundary. Very, very important runs here. Slightly straying down the leg side. Ashwin was adjudged Man of the Match award in the previous encounter. Now has been given the job to bowl the second over.
That was the very first ball. And the man of the match in the previous encounter for Somnath is out in the middle. That is Sapnesh, who has bowled only one maiden over so far in this tournament, and that has been bowled by the man who is batting on the crease for Somnath. This is in the air. This should be a catch, and catch taken nicely. So Sapnesh, that was not a bad hit, but he could not find a gap, and straight in the hands of the fielder, and Ashwin once again strikes. In comes the new batsman, Mahendra. They've got a very good bowling attack, so if they can get somewhere around 45-50 runs in 4 overs, they can certainly give tough fight to Amardeep Sports Club. Amardeep will be hoping that they go on to win this match. And whichever team G कोण match ही जिंकतली तांकां immediately next match खेळपा पडटली. Victorious team in this match will have to play immediately their next match. This time asking for wide, but it was above the leg stump. Very good umpiring here from the umpire. As always, the batsman feels that everything that goes down the leg side is wide, outside of stump is also wide. Once again, this is a wild swing, and he gets a wild result of that. Wildest result that you can get from the swing of the bat is a 6 runs, and that's exactly what he has got. With this 6 run score, moves on to 22. This was a quick ball. This was not a leg cutter. This was a quick ball. And that will fetch a single for the batsman. A strike will rotate. New batsman will come on strike. Mahadev on strike. Once again, quick ball. Very good comeback here from Ashwin. That will finish over number 2. The score moves on to 23 for the loss of 2 wickets. And it will be changing commentary over to Satish Shirorkar. So over to Sagar Goswami for further updates in English. So that after the completion of 2 overs, score is 23 for the loss of 2 wickets. And now another good promising all-rounder from Amardeep Sports Club, Pritesh with the ball. And he is called by his nickname as Abhi. Let's see what he can do now. He's a very good all-rounder. I've seen him performing at the various grounds. Right now at the SAG complex. Meanwhile, the first delivery has been guided towards the square leg. Fielder running to stop. Stops the ball quite inside the boundary rope by a big man, Pranay alias Vasant. So doing the job, patrolling the fence at the moment. Normally he is a keeper of the team. As Prahlad decides to keep the stumps, Pranay goes at the square leg boundary. Another lovely pace delivery right into the money. Meanwhile, there was a chance of a run out at the non-striker's end, but throw was little late. Fielder from the covers was late to react. Meanwhile, another single takes the total to 26. Another good hit, and the result will be the maximum sixer from the bat of Mahadev. That sixer takes the total to 32. Pritesh proving little costly in the beginning of the third over. Meanwhile, another hit. And what a lovely connection to guide the ball towards the cow corner boundary. There's a biggie.
consecutive sixer from the bat of Mahadev. And the six was hit in the similar region where the owner, Survey Sarva of this tournament, Bablu, adjusting the flags that are flying high. Meanwhile, another attempt towards the leg stump, but no proper connection. Takes the ball along the carpet, where the fielder from the deep mid wicket gathers the ball, throws it back to the keeper. Meanwhile, another single. Score moves to 39. Third over in progress. Pritesh looking to be little costly in this inning. Nonetheless, still he has got a chance to deliver. Meanwhile, low full toss. Chance of a catch. A young Turk takes but misses on the second attempt. Meanwhile, there's a luck favoring the batting side, and another single to conclude the third over after completion of 3. Score is 40 for the loss of 2 wickets. And a lot of support from Hart is going out by one man in the commentary box. I'm not going to take the name, but this team is close to that guy, supporting not officially but within his heart. Meanwhile, Santosh about to deliver the final over of the inning. Score is 40 for the loss of 2 wickets. 6 legal deliveries. Let's see what is going to happen. Whether Somnath can cross half century of the team or Centro. Santosh delivers right onto the legs. Lovely delivery to start with the penultimate, the last over of the first inning. Meanwhile, first run in form of leg byes, taking the total to 41. And that brings Mahadev, who has done little Tandav right at this moment on the wicket. Let's see whether he can continue with his Tandav. He has hit 3 sixes so far. Let's see whether he can continue, or Santosh is about to deliver. Low full toss, chance of a catch. Ball has been hit right into the gap between the square leg and the mid wicket, and ball goes past the boundary rope. And that's the maximum. The Tandav continues from Mahadev, making the bowlers to sweat out and to feel the heat. This is where Mahadev is very dangerous, and all are aware of the Tandav of Mahadev. It is much dangerous than any storm in the world. And now Mahadev, the storm of Somnath, is on the striking end. Centro, Santosh right arm over the stumps. Oh my dear, what a lovely reply from Santosh, right into the zone, right in the block hole. There was a chance of a second, but a good follow-up by the bowler on his follow-through. Gathers the ball at the square leg and minimizes the chances of the second run to keep Mahadev away from the striking end. Now Mahendra is on striking end. Let's see whether he can keep up the tempo as per the name that is given to him. Oh my dear, Yorker. Actually Mahendra, a big name in the international cricket, retired from cricket, has dispatched this Yorker out of the park in the form of helicopter, but here Mahendra is not able to do it. Manages to shackle the timber, allow the ball to go past him, and the wicket goes down. Thank you, DJ. So now jersey number 10. Ushant is the name on the back of the jersey of the player. Ushant Gaukar is the new man in on the striking end. Another good delivery. Ball takes the leading edge, travels to the keeper. Meanwhile, a strong throw, but the keeper fumbles as the ball hits the bat on its way. Goes it back to the keeper, but a slight fumble allows both the batsmen to take a single. And now Mahadev, a dangerous batsman, is on the striking end. Last legal delivery of the inning. Santosh
Alice Centro to deliver. 49 is the score at this moment. There's a wonderful strike, but along the carpet, tall guy, Prahlad, slight fumble, chance of a second. And definitely 2 runs quite comfortably. Meanwhile, third run is on. Throw at the non-striker's end, and that's a run out. So 2 runs taking the total to 51. And the target is of 52 runs. Let's see whether Amardeep can chase down the target or Somnath will be having the upper hand. Meanwhile, inviting the man who has come all the way from Barlimat, Mr. Shirodkar, in the second innings. के लिए काफी क्रूशियल मैच है ये। अगर इसमें से कौन जीतेगा, ज़्यादा करके एक कॉन्फिडेंस में वो ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके लिए अगर ये मैच हारा तो ये इस मैच के बीच और एक मैच उनके बाद मुझे लगता है सोमनाथ को खेलना पड़ेगा। सो महिंद्रा तैयार है, सभी की नज़रें इस मैच पर, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मैच ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये मैच तो क्रूशियल है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। महिंद्रा टू महेश। अभी महेश ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेल किया था, देखेंगे अभी महेंद्र के सामने वो क्या कर पाते हैं आगे का समय। इस बार खेला बहुत बढ़िया, थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद थी, चूक गए पूरी तरह, पांव को लगी, और इसी बीच एक रन तो जरूर बन पाया। मुझे लगता है लेग बाय का इशारा। दोनों अंपायर जो है काफ़ी अनुभवी अंपायर है, और ज़्यादा करके काफ़ी अनुभव अब्रार के पास है, जो अंडर 16-19 के गोवा के सिलेक्टर वो अभी तक है अभिजीत। फिलहाल सचिन मुझे लगता है नया उभरता हुआ अंपायर है, काफ़ी लंबे समय से उनके पास अनुभव तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन और हरीश कह रहा है कि, और इसी बीच एक रन, और सचिन भी काफ़ी अनुभवी अंपायर। मैं तो पहली बार उनके सामने, मैं बहुत ऐसे यहाँ पर पत्रकार चषक में, हाँ सिर्फ हरीश ने उसे बहुत बार देखा है और सागर ने भी देखा है। मैं ऑल द वे फ्रॉम बाली से आता है, क्योंकि हम यहाँ पर कमेंटेटर, बहुत से कमेंटेटर हैं, बंटी हैं, हरीश हैं, सागर हैं, और कोई है मनोज, ऐसे बहुत से कमेंटेटर हैं, और मेरे को एक मौका मिला है। धन्यवाद देना चाहता हूँ एमसीसी के लिए, क्योंकि ऑल द वे बाली से मेरे को एक मौका ज़रूर मिला। अभी सीपीएल होने वाला है, सही 25, 26, 27 तारीख को मुझे लगता है। अभी हरीश काकोडकर को मौका ज़रूर मिलेगा, अगले साल वो, पिछले साल वो था तो वहाँ पर। मैं इनकी अगली गेंद अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश, ओ ये बढ़िया गेंद थी, और ये आउट। तो हर हर महादेव जो है तांडव उन्होंने बनाया था, उसके लिए मुझे लगता है एक मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बन सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में भी अभी वो अच्छी गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं। फिलहाल महादेव की ऑफ उल्टा गेंद, बहुत बढ़िया खेला, और गेंद, ओ ये तो सही सलामत ले सकते थे, लेकिन जजमेंट नहीं हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 9, जीत का लक्ष्य उनके सामने 52, 52 दे रिक्वायर इन 24 डिलीवरी। सो दिस इज द सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। सो अभी तो तगड़ा बारी है सोमनाथ का, लेकिन एक छक्का जरूर लगा है, फिर भी तगड़ा बारी है, क्योंकि हर एक गेंद कीमती है, हर एक गेंद पर जोखिम उठाना जरूरी है। और फिलहाल महादेव का तांडव अभी चल रहा है, देखेंगे। और इस बार खेला, और ये तो कैच हो सकता था, लेकिन अगर महिंद्रा एक कैच लेने में सफल होते तो एक बढ़िया विकेट यहाँ पर प्राप्त हो सकती थी। फिलहाल तांडव तो चल रहा है, सागर का जो मैंने सुना था शब्द तांडव, महादेव का तांडव अभी भी यहाँ पर चालू है, देखेंगे। फिलहाल महादेव एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स एंड से उनके सामने अच्छी गेंद, और यॉर्कर गेंद थी, वहां पर कवर के क्षेत्र में धकेल दिया, एक रन आसानी के साथ मिल सकता है। जहां तक फील्ड होते तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा, और तारीफ करनी पड़ेगी महादेव की, क्योंकि इस तक एक छक्का जरूर गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक सही सलामत सही ढंग से गेंदबाजी की है और बरकरार रखा है। बल्लेबाज को ऊपर काफ़ी अंकुश लगाकर वो बैठे हैं। फिलहाल ले चलते हैं मैदान के बीच एक बार फिर, सभी की नज़रें इस मैच पर होगी, क्योंकि ये मैच जो है काफ़ी
एक इम्पोर्टेंट मैच है, इसमें से कौन जीतेगा उनका तगड़ा भारी होगा क्वार्टर फाइनल में। और अगली गेंद इस बार खेला, बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी हो रहे हैं। और यहाँ पर रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर मुझे लगता है प्रहलाद ने उसे वापस भेजा। वो जानते हैं कि वो स्ट्राइक लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ होने वाला है। देखेंगे क्या होता है दोनों बल्लेबाज के बीच। एक मुझे लगता है एक गेंद बची है, तारीफ करनी पड़ेगी महादेव की। फिलहाल स्कोर हमें 11 रन बन चुके हैं, काफी रन चाहिए जीत का लक्ष्य। और ये बड़ा शॉट, हवा में गेंद, और ये लंबा लंबा शॉट, गगनचुंबी छक्का। और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 17 रन। और अगले विवरण के लिए मेरे ख्याल से मैं माइक सौंपना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्त हरीश काकोडकर के हाथों में। शुक्रिया सतीश जी। आपने कहा था कि हम लोग सीनियर कमेंटेटर है, मुझे लगता है आप सबसे सीनियर हो, क्योंकि आप अभी तक 20-25 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और हमें भी मौका मिला आपसे कुछ सीखने का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 17 रन के ऊपर और बाकी के शेष 2 ओवरों में और 35 रनों की दरकार। सपनेश यही एक गेंदबाज है जिन्होंने मेडन ओवर डाला था इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक। फिर एक बार सपनेश ये कैच ले चुके हैं, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पे सपनेश ले चुके हैं। प्रहलाद ऊपर का विकेट और जान वापस आई सोमनाथ की इस विकेट के द्वारा। आमचो डीजे कुवेटाच्यान रिटर्न आयला, कुवेटाच्यो अजून तकली याद सगळी थंयच आसा आणि इल्ली विल्ला विल्ला कितें तरी सॉंग्स लायता। ते कोणा तरी सांडून आयले दिसता। डीजे इन फॉर्म, कुवेट रिटर्न, सपनेश once again वाइल्ड स्विंग, जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी यहाँ पे लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन। और यहाँ पे अश्विन फिर एक बार स्ट्राइक पे। अश्विन हालांकि इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था बॉल पे और फील्डिंग भी काफी मजबूत, लेकिन अभी हीरो बनना चाहेंगे अपने बैट के जरिए। फिर एक बार कैच हो सकता है, शॉर्ट थर्ड मैन, और यहाँ पे फिर एक बार कैच। क्या खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे सपनेश द्वारा, इस टूर्नामेंट में तगड़े गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। एक मेडन ओवर, हालांकि एक ही मेडन अभी तक टूर्नामेंट में वो भी डाला था सपनेश ने, और फिर एक बार सपनेश अपनी दावेदारी पक्की करते हुए इस टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर। प्रणय, और फिर एक बार चौथी मैच और चौथा गड्ढा। 4 बॉल ये खेल चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में और चारों मैचों में पहली गेंद पे आउट। गोल्डन डक 4 बार। सब पोजीशन ट्राई किया इन्होंने, सब पोजीशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हालांकि चारों दिशाओं में डिफरेंट गड्ढा। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कमेंट मारना है क्योंकि पीडब्ल्यूडी मेरे काफी करीब है। पीडब्ल्यूडी रोड पे जितने गड्ढे नहीं थे वो उन्होंने मारे हैं। और यहां कैच हो सकता है, रनआउट का भी मौका, कैच छोड़ चुके हैं। खूबसूरत यहां पे खूबसूरत बॉलिंग सपनेश द्वारा। इस 1 ओवर में पूरा
अपना प्रदर्शन दांव पे लगाते हुए सपनेश, खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा। बल्लेबाजी भी काफी तगड़ी की थी लेकिन इस मैच में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बॉलिंग के जरिए अपना कमाल दिखाते हुए यहाँ पे सपनेश। वाइड सिग्नल देते हुए अंपायर, सपनेश नाखुश, लेकिन अंपायर सचिन कहते हुए कि वो वाइड से बाहर, सपनेश नाखुश। हालांकि उनको अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखना चाहिए क्योंकि अंपायर और अपनी बीबी से झगड़ा करके कोई हासिल नहीं कर सकता ये दोनों। और ये फिर एक बार वाइड हो सकता है। बीबी घर पर और अंपायर फील्ड पर, दोनों हमेशा सही। फिर एक बार हैट्रिक वाइड बॉलों की। स्कोर अभी तक इस एक रन के जरिए 23 रन और 29 रनों की दरकार। सपनेश फिर एक बार 4 वाइड, लगातार 4 वाइड गेंदे, अभी भी 28 रनों की दरकार। इस मैच में हम सब कुछ देख पाए हैं। 4 बार आउट होते हुए प्रणय को भी देखा है, 4 वाइड डालते हुए सपनेश को भी देखा है, और अभी और 10 वाइड डालेंगे तो मैच और आसान होगा अमरदीप को। इस बार 5 गेंदें डाली इस आखिरी गेंद को डालने में, और आखिरी ओवर उनका समाप्त, तीसरी ओवर, और तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। आखिरी ओवर में 28 रनों की दरकार। देखना चाहेंगे कौन यहां गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और ये बहुत ही करारा शॉट, छक्का, पहला छक्का। 5 छक्कों की दरकार यहां पे जीत के लिए अमरदीप स्पोर्ट्स क्लब को। पहला छक्का यहां पे आता हुआ प्रीतेश के बल्ले से। फिर एक बार प्रीतेश, नितेश गेंद डालते हुए यहां पे वाइड हो सकती है, वाइड डाला यहां पे नितेश ने। शायद ये गेम प्लान हो सकता है कि हम लोग ऑफ स्टंप के बाहर डाले और बाहर, लेकिन अगर बैट्समैन सफल नहीं होता है तो ज्यादातर ये बॉल वाइड हो सकती है, और ये इसी की गूंज सुनाई देते हुए यहां पे अंपायर बोलते हुए कि ये भी वाइड रन। फिर एक बार, क्या ये दूसरा छक्का हो सकता है? ये दूसरा छक्का प्रीतेश द्वारा। क्या खूबसूरत हिटिंग, लंबी बड़ी हिटिंग प्रीतेश द्वारा। शानदार मुकाबला होता हुआ अमरदीप और सोमनाथ के बीच में। चार गेंदे और 15 रनों की दरकार। हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और ये सुंदर गेंदबाजी, हालांकि अच्छा किया प्रीतेश ने कि स्ट्राइक खुद को रख चुके हैं, क्योंकि जो बल्लेबाज 2 बॉल में 2 छक्का मारता है, मुझे लगता है कि उसी ने स्ट्राइक रखना चाहिए, क्योंकि वो उस फॉर्म में है और उसको लगता है कि मैं और 2 छक्का मारने की काबिलियत रख रहा हूं, और इस काबिलियत की बदौलत प्रीतेश ने ये स्ट्राइक रखा है। देखना चाहेंगे कि प्रीतेश अगले गेंद में नितेश को क्या कर पाएंगे। और यहां पे ऊंचा उठाया, हालांकि कैच हो सकता है। प्रीतेश 2 रनों की दरकार, यहां पे 2 रन निकालते हुए रन आउट का मौका, लेकिन प्रीतेश ने दूसरा रन आसानी से हासिल किया। बहुत ही खूबसूरत मैच, 2 गेंद लेकिन 13 रनों की दरकार। अगर इस बॉल पे छक्का पड़ता है तो प्रेशर होगा बॉलर के ऊपर। हमने देखा है कि सिद्धांत ने छक्का लगा के मैच टाई किया था। क्या प्रीतेश वैसा कुछ कर पाएंगे? और ये गेंद वाइड,
बहुत ही बुरी गेंदबाजी यहां पे करते हुए नितेश, इसकी जरूरत नहीं थी, हालांकि एक्स्ट्रा गेंद और एक्स्ट्रा रन भी दे दिया है। 2 गेंदे और 12 रन, क्या ये हासिल कर पाएंगे? और ये बॉल, और इस बार प्रीतेश ने काफी अच्छा तगड़ा कमबैक, और इस तरह से सोमनाथ आर्मी यहां पे मुझे लगता है पक्की दावेदारी करते हुए इस जीत की अग्रसर सोमनाथ आर्मी। लेकिन यहां पे नो बॉल और वाइड गेंद नहीं डालनी चाहिए प्रीतेश ने। महालक्ष्मी और कॅप्टन नेक्स्ट मॅच जातली ती ही मॅच कोण जिखता आणि महालक्ष्मी। सो सोमनाथ आणि महालक्ष्मी यांच्या भितर नेक्स्ट मॅच जातली, मागता कॅप्टन ऑफ सोमनाथ